Hello everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss about all the important articles in the constitution which are relating to the president of India. So it contains article 52 to 62 and 71, 72 and 77. So let's discuss all the articles. Article 52 talks about that there shall be a president of India. Then article 53 talks about executive power of the union shall be vested on the president. 54 is election, 55 is manner of election, 56 is term, 57 is eligibility for re-election, 58 is qualification, 59 is condition of office, 60 is oath. Then 61 is impeachment procedure, 62 is time of holding the election, 71 is matter relating to the election of president and vice president, 72 is power of president to grant pardons etc. 72 is conduct of business of the government of India. That means all the business of the government of India shall be taken in the name of president. So let's explain all the articles. Article 52 and 53. Article 52 talks about that there shall be a president of India. So it's mandatory that in India there shall be a president. Article 53 talks about executive power of the union. So it clearly stated that in India the executive power of the union shall be vested on the president, and the president shall exercise such power either directly or indirectly with the help of his subordinate officers. Along with that executive power, the president is also the supreme commander of defense force. तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 53। उसके अलावा आर्टिकल 53 में क्लॉज 3 ऐड किया गया विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Clause 3 of Article 53 talks about that nothing in this article shall be deemed to transfer to the President any function conferred by any existing law on the government of any state or other authority. इसका मतलब ये है कि हमें तो पता है कि प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट के पास यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर होता है, पर अगर किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ ने ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी अदर अथॉरिटी को कन्फर करता है, तो इस सरकमस्टांस में दैट स्टेट अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी और सच स्टेट गवर्नमेंट शेल एक्सरसाइज सच पावर। उसका मतलब यही है कि अगर किसी भी लॉ ने, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ ने ये यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होता है वो अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कन्फर कर देता है या किसी अदर अथॉरिटी को कन्फर कर देता है, तो उस सरकमस्टांस में वो स्टेट गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी ये पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। एग्जाम्पल आप ले लो कि किसी एक स्टेट में ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड ड्यू टू पोल्यूशन बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है यूनियन एज ए यूनियन एग्जीक्यूटिव ही कैन बैन सच केमिकल्स। बट यहाँ पे एक लॉ भी है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सेम पावर कन्फर किया गया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट भी बैन कर सकते हैं सच केमिकल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिड सच एक्ट। So as per these provisions, as per that article, the state government can do such. The next is Article 53, Clause 3, Subclause B, which talks about that nothing in this article shall prevent Parliament from conferring any law functions on authorities other than the President. इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को छोड़ के किसी भी दूसरी अथॉरिटी को कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कन्फर कर सकता है। हमें पता है कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास रहता है, पर एज पर दिस प्रोविजंस द पार्लियामेंट कैन कन्फर सच पावर टू एनी अदर अथॉरिटी। दैट डजंट मीन दैट पार्लियामेंट विल कन्फर ऑल द पावर टू एनी अदर अथॉरिटी. It depends upon the circumstances and depends upon the subject matter. For example, आप RBI मान लो, RBI को पावर कन्फर किया गया ऑल द बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड। तो so the next provision is Article 54 and 55 which talks about election of president and manner of election. Article 54 talks about who can elect the president. So it was clearly stated that it was elected by an electoral college system. And the electoral college system consists elected members of both house of the parliament plus elected members of the state legislative assemblies plus elected member of two legislative assemblies of two union territories that is Delhi and Puducherry. इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट वोट, ओनली इलेक्टेड मेंबर। दोनों हाउस का पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है वो लोग वोट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में जितने भी इलेक्टेड मेंबर है वो लोग भी वोट कर सकते हैं। और दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वहाँ पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होता है वो लोग भी पार्टिसिपेट करते सकते हैं। आर्टिकल 55 विच टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो रिलेटिंग टू दैट टॉपिक ओनली।
The next important article is Article 56 and 57, which talks about term of president, and 7 talks about eligibility for re-election. 56 में यही बोला गया कि प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 years, पर उससे पहले प्रेसिडेंट रिज़ाइन भी कर सकते हैं. If the president wants to resign, he should give the resignation letter to the vice president and also should inform such to the speaker of the Lok Sabha. इसके अलावा प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है इफ़ प्रेसिडेंट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया तो ऑन दैट ग्राउंड प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड एंड द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल शैल बी गिवन इन आर्टिकल 61. उसके अलावा प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू हिज ऑफिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. दैट मीन्स टर्म ख़त्म होने के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं. और कितना टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं? तो ओनली 6 months. दे कैन कंटिन्यू हिज ऑफिस फॉर 6 months and the reason of continuation is that if his successor did not appointed. That means दूसरा प्रेसिडेंट अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ और प्रेसिडेंट का टर्म ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और 6 months अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. एंड विद इन दैट 6 months द इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट प्रेसिडेंट. 57 talks about eligibility for re-election. So as per Article 57 that all the presidents are eligible for re-election. Next article is Article 58 and 59. 58 talks about qualification of the president and 59 talks about condition of office. 58 talks about that the president should be a citizen of India, should have completed 35 years of age and qualified to be a member of Lok Sabha, and he should not be eligible if he hold office of profit under central government or the state government or any other local authority which is controlled by the central government or the state government. तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा है जो कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई अदर अथॉरिटी जो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तब उनका जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा. ही इज़ नॉट एलिजिबल ऑन दैट सर्कमस्टांस. नेक्स्ट आर्टिकल इज कंडीशन ऑफ ऑफिस, दैट इज आर्टिकल 59 व्हिच टॉक्स अबाउट, मतलब ये है कि प्रेसिडेंट होने के बाद अगर फिर भी वो मेंबर रहते हैं कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में वो मेंबरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, तब क्या होगा, उनका प्रेसिडेंशियल पोस्ट ख़त्म हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट होने के बाद वो कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर नहीं हो सकते. अगर वो मेंबर रह चुके हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले, ओथ लेने से पहले उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी हाउस के मेंबर है. उसके बाद ये बोला गया कि उनको ऑफिशियल रेसिडेंस मिलेगा उनको विदाउट पेइंग रेंट, उनको रेंट देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफिशियल रेसिडेंट मिलेगा वो. एंड ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस विच इज़ मेंशन इन शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. शेड्यूल 2 में जितने भी एमोल्समेंट के बारे में बोला गया है वो सब प्रेसिडेंट को मिलेगा. और ड्यूरिंग हिज टर्म ही शैल नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम सच प्रिविलेजेस. Next is Article 60 and 61. 60 talks about oath. So the oath of president shall be taken by Chief Justice of the Supreme Court of India or in his absence the superior judge of the Supreme Court. Next is Article 61 which talks about procedure of impeachment. So the president can be impeached if he violated the constitution, and the procedure of impeachment contains the special majority in both houses. तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर यही है कि अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया तभी जाके उनको इम्पीच किया जाएगा, और इम्पीचमेंट में स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. तो उसका जो प्रोसीजर है वो है, पहले तो किसी भी हाउस में एक चार्ज ऑफ नोटिस इशू करना पड़ेगा, और उसी चार्ज ऑफ नोटिस में उस हाउस का 1/4 मेंबर का सिग्नेचर रहना पड़ेगा. चार्ज ऑफ नोटिस इशू करने के बाद उस नोटिस को स्पीकर और चेयरमैन को सबमिट किया जाएगा. उसके बाद 14 डेज़ टाइम पीरियड दिया जाएगा. उसी 14 डेज़ में इन्वेस्टिगेशन चलेगा. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ फाउंड्स दैट yes something is going wrong, then the resolution shall be passed by that house and it should be passed by 2/3 majority of that house. जिस हाउस पे नोटिस को इशू किया गया उस हाउस पे पहले रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, वो भी 2/3 मेजोरिटी से. पास करने के बाद द रेजोल्यूशन शैल बी पास टू द नेक्स्ट हाउस. नेक्स्ट हाउस पे चला जाएगा. नेक्स्ट हाउस में भी सेम प्रोसेस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा. वहाँ पे प्रेसिडेंट को भी पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट कैन इन्वॉल्व इन सच इन्वेस्टिगेशन टू डिफेंड हिमसेल्फ.
इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर पता लगा कि येस प्रेसिडेंट इज गिल्टी, देन इन द नेक्स्ट हाउस अगेन द रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड हाउस बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस, और पास होने के बाद जाके प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा. This Article 62 and 71. 62 talks about time to hold election, and 71 talks about matters relating to the election of president and vice president. 62 यही बोलता है कि before expiration of the term of president, the election shall be conducted, and in case of death, removal or resignation, such election shall be conducted within 6 months. तो यहाँ पे क्लियरली ये बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है उनका टर्म्स ख़त्म होने के पहले ही न्यू इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए. और अगर ये मान लो कि एग्जिस्टेंट प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया है, या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, या उनका डेथ हो गया, उस सर्कमस्टांस में विद इन 6 मंथ न्यू इलेक्शन कंडक्ट होगा. 71 टॉक्स अबाउट मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. इसका मतलब ये है अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेके कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कौन रिजॉल्व करेगा ये डिस्प्यूट. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया दैट सच डिस्प्यूट शैल बी इंक्वायर्ड एंड रिजोल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी फाइनल. अलावा ये भी बोला गया कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा दैट द इलेक्शन इज वॉइड, उस दिन से ही प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को उनका काम से हटा दिया जाएगा. उससे पहले उन्होंने जो भी काम किया वो सब वैलिड रहेगा. उसके बाद आता है दैट इलेक्शन शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम होता है, अगर उस ग्राउंड में कोई भी क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट में तो ये क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करेगा. उसके बाद आता है पार्लियामेंट विल रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू दिस बाय लॉ. पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उस मैटर में पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा एज पर लॉ. The next article is Article 72 which talks about power of president to grant pardons etc. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, रेप्राइब्स, रेस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट फॉर एनी ऑफेंस. और यहाँ पे ऑफेंस क्या होगा? ऑफेंस हो सकता है कि सेंटेंस गिवन बाय कोर्ट मार्शियल ने कोई भी सेंटेंस दिया, और डेथ सेंटेंस, किसी भी कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस दिया, और अदर मैटर वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड. तो ये 3 केसेस में प्रेसिडेंट ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है. इसके अलावा ये भी बोला गया कि सच पावर शैल नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स टू रेमिट और कम्यूट सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शियल, पास्ड बाय द कोर्ट मार्शियल. दैट मीन्स प्रेसिडेंट के जो भी पावर है आर्टिकल 72 ने, वो पावर किसी भी अदर अथॉरिटी के पावर को अफेक्ट नहीं करेगा. यहाँ पे अदर अथॉरिटी वही होता है जो कोर्ट मार्शियल के सेंटेंस को रेमिट या कम्यूट करता है. फॉर एग्जांपल ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स. इसका मतलब ये है कि हमें तो पता है कि डिफेंस का जो सुपीरियर ऑफिसर होता है, सुपीरियर कमांडर, ये तो प्रेसिडेंट होता है, पर उनके नीचे भी बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं. वो लोग भी सेंटेंस, कोर्ट मार्शियल के सेंटेंस को डील कर सकते हैं. ये बहुत सारा पोस्ट रहता है. तो उसी पोस्ट में अगर किसी भी अथॉरिटी को पावर दिया गया कि कोर्ट मार्शियल के सेंटेंस को रिमिट या कम्यूट करना, और अगर वो लोग करते हैं तब जाके प्रेसिडेंट के पावर उस पावर को इफेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट टॉक्स अबाउट सच पावर ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट टू रिमिट और कम्यूट डेथ सेंटेंस बाय लॉ. अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया किसी भी डेथ सेंटेंस को कम्यूट या रिमिट करने के लिए, या कोई भी सेंटेंस को कम्यूट या रिमिट करने के लिए, तब प्रेसिडेंट का जो पावर होता है आर्टिकल 72 में, वो पावर उसी गवर्नर ऑफ द स्टेट के पावर को इफेक्ट नहीं करेगा. This is Article 77 which talks about conduct of the business of the government of India. That means all the business of the government of India shall be taken in the name of the president. Orders and instrument executed in the name of president shall be authenticated in such manner as specified in the rules made by the president. पहले तो बोला गया कि जितना भी हमारे पार्लियामेंट का जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, हमारे गवर्नमेंट का जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिया जाता है. सेकेंडली, अगर कोई भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रूमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे एग्जीक्यूट किया गया है तो ये जो ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट ये सब ऑथेंटिकेटेड भी किया जाएगा उसी मैनर पे जो मैनर प्रेसिडेंट सेट करेंगे बाय रूल्स. उसके अलावा कोई भी लोग
उस इंस्ट्रूमेंट का ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता। उसके अलावा ये भी बोला गया है कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बिजनेस है उसका कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए प्रेसिडेंट रूल्स फ्रेम कर सकते हैं और मिनिस्टर्स को अपना अपना बिजनेस एलोकेट करने के लिए भी प्रेसिडेंट रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। So this is all about all the important articles relating to the President of India. So if you like my video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.